Assalamu alaikum all, how are you? Hope you're doing well and taking good care of yourself, especially your hygiene. This is the chapter we are going to learn about today is land and water. But before the beginning of anything, we always start with the name of Allah, the most merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh my Lord, relieve my mind and ease my task for me and loosen not from my tongue that they may understand my saying. Rabbi zidni ilma. Oh Lord, increase me in knowledge. So children, this is your textbook, social studies textbook, chapter 2, land and water. As you know, what is the meaning of land? Like land is like the earth's surface which is dry. The dry part of the earth's surface is called land, and water सबको पता है पानी. ठीक है? Now open page number 8 in your textbook social studies. I'm going to read the chapter with the explanation, and all of you please put your finger on the line. Our earth is the only planet which has life. As you know, earth is the third planet in our solar system. We have 8 planets and earth is the third planet in our solar system which has exist life, जिसके अंदर एक लाइफ चल रही है, दुनिया चल रही है. ठीक है? अदर देन अर्थ कहीं पे भी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. Looking at the globe, it can be seen that the surface of the earth is made up of land and water. If we looking at the globe properly, so then we can easily find out how much the surface of earth is covered with water. Okay, जितना भी blue है इसके अंदर वो सारा पानी ही पानी है. Okay, earth surface covered with water. 70% of the surface of earth is covered with water and only 30% पर land है. So imagine yourself कि कितना ज़्यादा सिर्फ पानी ही पानी है. Land, a very big part of land is called continent. Large area of the land, कोई भी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा उसको हम कहते हैं continent. ठीक है? There are 7 continents in the world. और how many continents we have? We have 7 continents. Okay, the name of the continents are follow: Asia, Africa, Europe, North America, South America, Antarctica and Australia. These are the 7 continents in the world. ठीक है? All of the 7 continents are surrounded by water. As you already saw in the globe as well, that we all the continents, all the whole world is surrounded by water. हर जगह सिर्फ क्या है, सब एंड में पानी ही पानी है. एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ. एशिया जो है इन सारे कॉन्टिनेंट्स में, आउट ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स, द एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ओके, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन एशिया. पाकिस्तान कहाँ लोकेट करता है? पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन एशिया. ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 9. ओके, water is very important for all living things on the surface of the earth. Definitely water के पानी के बगैर we cannot survive. Okay, so water is important for all living things like animals, like plants, like us. है ना? सबको पानी चाहिए. Almost 70% of the earth's surface is made up of water in the form of oceans and seas. जो 70% हमारा earth surface जो covered है with water, वो किस फॉर्म में है? या तो बहुत बड़े बड़े समंदर हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओशन, और नॉर्मल समंदर हैं. ठीक है? जब बहुत बड़े समंदर होते हैं उनको द वेरी लार्ज एरिया ऑफ द सी इज़ कॉल्ड एन ओशन. ठीक है? एंड हाउ मेनी ओशंस वी हैव 5 ओशंस: पैसिफिक ओशन, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean. These are the 5 oceans. Okay, and Pacific Ocean is the largest of the world's 5 ocean. और जो Pacific Ocean है, इन 5 oceans में सबसे largest, सबसे बड़ा ocean is Pacific Ocean है. Understand that? So these are 5 oceans, as you can see in your book as well. Okay, 4 main oceans. ऐसे तो हमारे पास वी हैव 5 ओशंस, उसमें से 4 आर द मेन ओशंस. ओके, 4 मेन ओशंस हैं. उसमें फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट. सबसे बड़ा और सबसे डीप, सबसे गहरा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन. देन द नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन, अबाउट हाफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशन. हाफ कर दें अगर पैसिफिक ओशन को तो वो अटलांटिक ओशन बन जाएगा. ठीक है? हाफ है साइज में पैसिफिक ओशन के. इंडियन ओशन स्लाइटली स्मॉलर देन द इफ़ वी आर गोइंग टू कंपेयर अटलांटिक एंड इंडियन, तो स्लाइटली अटलांटिक से छोटा है इंडियन ओशन. देन द लास्ट इज आर्कटिक ओशन, अबाउट 7% द साइज ऑफ द पैसिफिक. अगर हम पैसिफिक ओशन का 7% साइज लगाएं तो वो आर्कटिक ओशन बनेगा. दिस इज द स्मॉलेस्ट ओशन. ओके, लैंड फॉर्म्स.
डिफरेंट शेप्स ऑफ द सरफेस ऑफ लैंड्स आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. डिफरेंट सरफेस हैं, शेप हैं लैंड की, और उनको हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स. डेफिनेटली डिफरेंट सरफेसेस हैं तो उनको हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं. द लैंड हैज़ प्लेन्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, वैलीज, रिवर्स, डेजर्ट्स, आइलैंड, सीज, ओशंस एक्सेट्रा. प्लेन्स कोई भी फ्लैट सरफेस, माउंटेन्स बड़ी बड़ी सी पहाड़ियाँ, फॉरेस्ट जंगलात, वैलीज छोटे छोटे से गाँव, रिवर्स दरिया, डेजर्ट्स सहरा, आइलैंड जजीरे, सीज समंदर, ओशंस बहुत बड़े समंदर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट प्लेन. लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड. कोई भी सीधा सरफेस, फ्लैट लैंड मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस होती है, उसको हम कहते हैं प्लेन. ओके, देन हिल, हायर देन द लैंड. सरफेस, लैंड की सरफेस से जो हाई थोड़ा सा हिस्सा होता है हम उसको कहते हैं हिल. माउंटेन, वेरी हाई हिल, जो बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े. इट्स नॉट ईजी टू क्लाइम अप द माउंटेन्स. ठीक है, तो वो माउंटेन्स बड़े बड़े से माउंटेन्स कहलाते हैं, पहाड़ियाँ माउंटेन्स कहलाती हैं. फॉरेस्ट, लार्ज एरियाज ऑफ ट्रीज, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ हों, दरख्त हों, जंगलात, उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, जंगलात, फॉरेस्ट को. वैली, लो एरिया बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स, जो लो एरिया होता है जहाँ पे ऑब्वियसली लोग रहते हैं, छोटे छोटे से उनके घर होते हैं. ठीक है, between the hills and mountains are called valley. Okay, desert, hot, dry and sandy land. Why it's going to be hot all the time? Because वहाँ desert में we cannot we don't see anywhere, पानी वगैरह कुछ नहीं होता. ठीक है, we don't see the water anywhere. So इसलिए वो hot भी होते हैं, dry भी होते हैं. ओके, और सैंडी, तो डेजर्ट में सिर्फ हर जगह मिट्टी ही मिट्टी, रेत ही रेत होती है. आइलैंड, लैंड सराउंडेड बाय वाटर. आइलैंड किसको कहते हैं, जो किसी भी जजीरा, वैसे तो आइलैंड कहते हैं जजीरे को, कोई बीच में कोई आइलैंड हो, छोटी सी जगह हो जहाँ जो ड्राई लैंड हो और उसके बिल्कुल उसके इर्द गिर्द में सारा पानी पानी हो. दिस इज़ कॉल्ड ड्राई लैंड. जैसे हम ड्राई होता है जो, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड आइलैंड. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे चरना आइलैंड है, ठीक है ना, पूरे साइडों में सिर्फ पानी पानी है, बीच में थोड़ा सा ड्राई लैंड है, तो उसको इसलिए हम चरना आइलैंड, चरना इज़ अ नेम एन आइलैंड, क्योंकि वो आइलैंड है बिल्कुल सराउंडेड बाय द वाटर, तो दैट्स वाई वी कॉल इट आइलैंड. ओके, देन स्ट्रीम, थिन नैरो बॉडी ऑफ वाटर. जो छोटी छोटी सी आप देखते होंगे पानी बह रहा है, छोटी छोटी सी नालियाँ बह रही हैं. ठीक है ना, आप जाते होंगे if you went somehow you went to कश्मीर और somewhere like that, तो आप देखेंगे डिफरेंट जगहों पे ना छोटे छोटे से पानी कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है वहाँ पे. ठीक है ना, तो वो स्ट्रीम कहलाती हैं. थिन नैरो बॉडी ऑफ वाटर, जो छोटे छोटे सी जगहों से पानी निकल के आगे फ्लो हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्ट्रीम. रिवर, दरिया, लॉन्ग फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी मतलब समंदर में, तो अब व्हेन यू कैन कंपेयर रिवर विद सी, तो वहाँ पे समंदर में तो बड़ी बड़ी सी वेव्स होती हैं ना, बड़ी बड़ी सी हाई वेव्स होती हैं. ठीक है, रिवर में इतनी बड़ी बड़ी वेव्स होती है, थोड़ा सा स्टेबल होता है रिवर. लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, सी किसको कहते हैं, बहुत सारा पानी, सॉल्टिश वाटर समवेयर, बहुत सारा पानी पानी दूर दूर तक देखें तो आपको, जैसे आप सी व्यू जाते हैं, आप देखते हैं कहीं दूर दूर तक कोई और चीज़ें, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आते हैं. एंड द सी वाटर इज़ सॉल्टिश एज वेल. ओशन, द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर. बड़े, अगर आप समंदर को, सी को डबल ट्रिपल टाइम्स बड़ा कर दें तो दिस इज़ कॉल्ड ओशन. वो क्या कहलाता है, ओशन कहलाता है. मतलब सी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा जो होता है वो होता है ओशन. ओके, अबाउट 97% ऑफ अर्थ वाटर इज़ इन द ओशन. ठीक है, अबाउट 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ इन द ओशन, बट इट इज़ सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स. 97% हमारा जो पानी आता है, जो पानी है हमारे अर्थ सरफेस पे, वो है ओशन का, और वो बिल्कुल सॉल्टिश होता है. ठीक है ना, वो सॉल्टिश होता है. वी कैन नॉट यूज दिस सॉल्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ और फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. कोई फसलों के लिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ इज़ नॉट गुड एट ऑल. ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर. ओके, hope you understood it nicely. Done. Kindly read this chapter at least twice at home. Done. And do learn
how many continents we have, how many oceans we have. Okay, all these sort of questions which are related to this chapter. Okay, next time inshallah I'll join you again with the work which is related to this chapter in our workbook as well as the textbook. Until then, take care. Allah Hafiz.